अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइंस हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स मेमोरी लेस डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हैं जिनकी आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है एट एनी इंस्टेंट ओनली ऑन इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इनपुट्स। इसमें हमारे पास कोई स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होता और ये जो है हमारे पास बेसिक गेट्स जो कि नैंड नॉर नॉट गेट्स हैं उनको कंबाइन करके बनाया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स हमारे पास जो हैं वो एडर है, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर, डिकोडर्स एक्सेट्रा। दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट in which we have multiple inputs, A, B, C and up to so on, and one or more outputs X and Y. In this case X and Y are the outputs and outputs पे डिपेंड करती है present state of the inputs पे. Combination logic circuits can be implemented using gate or available ICs in the market. These are the requirement of the combination logic circuits uh, for designing any combination logic circuit. Number one, by a set of statements. हमारे पास set of statements होने चाहिए या boolean expressions होने चाहिए या हमारे पास truth table होना चाहिए. These are the steps to design the combination logic circuits using gates are: form the set of statements or boolean expressions or truth table and determine the number of input and output variables. Write down the expression in the form of sum of products or product of sums. Simplify the Boolean expression. And number 4, implement the simplified Boolean expression using the logic diagram. These are the classification of combination logic circuit. Basically, a combination logic circuit can perform the following functions: arithmetic logical functions, data transmission and the code converters. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस में हमारे पास एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, कंपैरेटर्स एंड पीएलडीज वगैरह आ जाते हैं. एंड फॉर डाटा ट्रांसमिशन वी हैव द लॉजिक सर्किट्स लाइक मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स एंड डिकोडर्स. एंड फॉर द कोड कन्वर्टर्स we have the logic circuits like binary, BCD7, segment display, etc. The digital comparator is a very useful combination logic circuit which is used to compare the values of two binary digits. And the comparators are made up from standard and NOR and NOT gates that compare the digital signal present at their input terminal and produce an output depending upon the condition of those inputs. जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स जो हैं उनकी आउटपुट डिपेंड करती है प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इनपुट्स पे. फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी बाइनरी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें उसे कंपेयर करना आना चाहिए और डिटरमिन करना है हमने कि क्या कि वेदर द वैल्यू ऑफ इनपुट ए इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इनपुट बी एक्सेट्रा. Basic purpose, as I already discussed, of a digital comparator is to compare a set of variables or unknown numbers, for example, a1, a2, a3, an etc., against that of the constant or unknown values such as b, b1, b2, b3, b up to bn, etc., and produce an output condition or flag depending upon the result of the comparison. Example number 1, which is very useful to understand the basic comparator, which states that design and implement a 1-bit comparator using logic gates. Consider we have
two numbers a and b, one bit numbers, and these two are the inputs of the comparator. हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं a और b जो कि वन बिट नंबर्स हैं, और हमारे पास ये कंपैरेटर की इनपुट्स हैं. while a is equal to b, a greater than b and a less than b are the outputs of the comparator. हमारे पास तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं, या a b के इक्वल होगा, या a b से बड़ा होगा, या a जो है हमारे पास लेस देन b होगा. एंड दीज आर द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर. दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द वन बिट कंपैरेटर. सपोज हमारे पास इनपुट्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास a की 0011 और b है हमारे पास 0101. इनपुट्स पे हमारे पास लेट से जब a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 है, तो ये दोनों जो हमारे पास नंबर्स हैं इक्वल हैं. तो आपके पास जो आउटपुट में है a इज इक्वल a लेस देन b, a इज इक्वल टू b एंड a ग्रेटर देन b. इस कंडीशन में आपके पास जो है आउटपुट वो क्या होगी, a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर आपके पास 1 एक्टिव हो जाएगा. जबकि a आपके पास लेस देन b भी नहीं है, इस कंडीशन में a ग्रेटर देन b भी नहीं है. इन सेकेंड कॉम्बिनेशन a जिसमें आपके पास 0 है, b आपके पास 1 है, तो इस कंडीशन में आपके पास a जो है वो b से छोटा है. सो a लेस देन b, आपके पास आउटपुट आ जाएगी 1, यहाँ पे ये अनेबल्ड हो जाएगा. देन इन थर्ड कॉम्बिनेशन a जो है हमारे पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 0 है, तो इस कंडीशन में हमारे पास a जो है ग्रेटर देन b है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये 1 ये अनेबल हो जाएगी कंडीशन. इन फोर्थ कॉम्बिनेशन a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1. सो a और b आपके पास क्या है, दोनों इक्वल हैं. सो a इज इक्वल टू b, आपके पास ये वाला जो कॉलम है a इज इक्वल टू b, ये अनेबल्ड हो जाएगा. अब इस जो टेबल के अकॉर्डिंगली हमने जो है कर्नॉफ मैप में हमने इनकी मैपिंग करनी है फॉर a लेस देन b, फॉर a इक्वल टू b एंड फॉर a ग्रेटर देन b. फॉर a लेस देन b आपके पास जो है a वेरिएबल यहाँ पर शो हो रहा है 0 1, और b वेरिएबल आपके पास यहाँ पर है 0 and 1. a लेस देन b आपका कब अनेबल हुआ, जब a आपके पास 0 होगा और b आपके पास 1 होगा. सो a 0 b 1, तो आपके पास ये जो कर्नॉफ मैप में है ये मैप हो जाएगा फॉर a लेस देन b के लिए. फॉर a इक्वल टू b आपके पास दो कंडीशन है, जब a 0 है और b 0 है, और जब a 1 है और b 1 है, तो आपके पास a इज इक्वल टू b आएगा. सो a 0 एंड b 0 आपने यहाँ पे 1 मैप कर दिया, a 1 एंड b 1 यहाँ पर भी आपने इसको मैप कर दिया. फॉर द थर्ड आउटपुट a ग्रेटर देन b आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0. a जब आपके पास 1 होगा और b जब आपके पास 0 होगा, आपके पास ये आपने कर्नॉफ मैप में इसको यहाँ पे मैप कर दिया 1 के साथ. नाउ वी हैव टू डेवलप a Boolean equation for a less than b, a is equal to b and a greater than b. From Karnaugh map, we get the Boolean expression for a less than b. हमारे पास जो इस पॉइंट के ऊपर a की जो वैल्यू है दैट इज 0 और b की वैल्यू है हमारे पास 1. सो द Boolean expression is a complement b. फॉर a इज इक्वल टू b हमारे पास दो कंडीशंस थी जब हमारे पास a और b इक्वल्स थे. एक कंडीशन थी जब a भी 0 है और b 0 है, और दूसरी कंडीशन है जब a 1 है और b भी 1 है. फॉर a 0 एंड b 0 दैट इज a complement b complement प्लस a b. दिस इज अ Boolean expression for a is equal to b.
For a greater than b, the Boolean expression is a into b complement. अब अगर हम इन प्रोडक्ट टर्म्स को देखें, फॉर a लेस देन b, तो हमें एक एंड गेट रिक्वायर्ड है और एक जो है हमें इन्वर्टर रिक्वायर्ड है जो कि a वेरिएबल को इन्वर्ट करेगा। अगर हम इस बुलियन एक्सप्रेशन को ज़रा गौर से देखें फॉर a इज इक्वल टू b में, तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। एंड फॉर a ग्रेटर देन b हमें एक एंड गेट रिक्वायर्ड है और एक इन्वर्टर रिक्वायर्ड है जो कि b वेरिएबल को इन्वर्ट कर देगा। सो द लॉजिक डायग्राम फॉर वन बिट कंपैरेटर इज, हमारे पास ये एक एंड गेट है, ये दूसरा एंड गेट है, ये दिस इज फॉर a लेस देन b, दिस इज फॉर a ग्रेटर देन b, और ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है फॉर a इज इक्वल टू b। यहाँ पर अगर आप देखें a की वैल्यू इन्वर्ट होके दी जा रही है एज अ इनपुट और b आपके पास इस गेट पे आ रही है। ये आपके पास जो आउटपुट होगी दैट इज a कॉम्प्लीमेंट b, दिस इज फॉर a लेस देन b, एंड दिस इज exclusive NOR gate is the which is used for the expression of a is equal to b, a complement b complement। अगर आप एक इनपुट को देखें a complement एंड b complement प्लस ए बी, दैट इज a exclusive NOR into b। सो एक तो आपके पास a वेरिएबल इसमें इनपुट एज अ इनपुट जा रहा है और एक b वेरिएबल एज अ इनपुट जा रहा है। तो और जब ये इसमें से पास आउट होगा तो आपके पास जो आउटपुट आएगा दैट इज a exclusive NOR b, which is for a is equal to b। For थर्ड कंडीशन दैट इज a ग्रेटर देन b, आपके पास जो आउटपुट है दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास a वेरिएबल जो है वो सिंपल इसकी इनपुट है और b जो है आपके पास इन्वर्ट होके इस गेट की इनपुट है, दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि कंडीशन है a ग्रेटर देन b के लिए। सो दिस इज द डिजाइन ऑफ वन बिट कंपैरेटर which is shown in this figure. Example number 2, which states that design a combination logic circuit with 4 input variables that will produce logic 1 output when the number of ones in the input is even। इस एग्जाम्पल को हम जरा सॉल्व करते हैं। लेट्स कंसीडर a b c and d are the 4 inputs and y is the output। The truth table and the Karnaugh map is shown below as per the problem stated in example number 2। हमारे पास 4 इनपुट्स हैं। सो ए बी सी डी आर द 4 इनपुट्स और आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगी दैट इज 16, 2 टू द पावर 4 16, और आउटपुट आपके पास एक है y। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपके पास आउटपुट के ऊपर 1 अनेबल्ड होगा। 1 लॉजिक उस वक्त आएगी जब आपके पास इनपुट कॉम्बिनेशंस में नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन फॉर्म में होंगे। अगर आप पहली कॉम्बिनेशन में देखें तो नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 0 है विच इज़ इवन, तो आपकी आउटपुट जो है वो लॉजिक 1 है। दूसरी कॉम्बिनेशन में देखें यहाँ पे नंबर ऑफ वंस आपके पास ऑड है, तीसरी में भी ऑड है, तो आपके पास आउटपुट जो है वो 0 0 है। फोर्थ कॉम्बिनेशन में देखें तो नंबर ऑफ वन जो है आपके पास इवन है, तो आपके पास आउटपुट लॉजिक जो है वो 1 होगी। सिमिलरली जहाँ जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ वंस जो हैं इवन होंगे आपने वहाँ पर आउटपुट जो है वो लॉजिक 1 ड्रॉ कर देनी है। आफ्टर डिजाइनिंग दिस टेबल by the statement, we have to map this truth table in the Karnaugh map so that we can get Boolean expression। So Karnaugh map में आपके पास जो ए बी वेरिएबल्स हैं वो इस तरफ शो हो रहे हैं और सी डी वेरिएबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपके पास 1 है उस जगह पे आपने उसको मैप कर देना है Karnaugh map में। ए और बी वेरिएबल आपके पास जब 0 है और सी और डी वेरिएबल जब आपके पास 0 है तो आपके पास y जो है 1 वो यहाँ पे मैप हो गया। देन ए और बी 0 0 एंड सी एंड डी 1 1, तो आपने यहाँ पे इसको 1 को इधर मैप कर दिया। सिमिलरली बाकी रिमेनिंग जितनी भी कॉम्बिनेशंस हैं उनके लिए आपने यहाँ पे ट्रुथ टेबल में इसको मैप कर देना है। जब हमने इसको मैप कर लिया इस ट्रुथ टेबल को इस कर्नाफ मैप में,
इसके बाद हम इजीली जो है बूलियन एक्सप्रेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। इस पोजीशन पे जो आपके पास आउटपुट की वैल्यू जो 1 आई, दैट इज ए बी 0 0 एंड सी डी 0 0। तो आपके पास जो प्रोडक्ट टर्म आएगी यहाँ से, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास 8 प्रोडक्ट टर्म्स आ गए। अब हमने इसको मिनिमाइज करना है। तो पहली दो टर्म्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास रिमेनिंग जो रह जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट ओपन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज प्लस इन दो टर्म्स में आप सी कॉम्प्लीमेंट डी को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी ब्रैकेट ओपन ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज प्लस इन दो टर्म्स में आप सी एंड डी कॉमन ले लें, सी डी ब्रैकेट ओपन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज प्लस इन लास्ट टू टर्म्स के अंदर आप सी डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा सी डी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट ओपन ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप देखें तो ये जो है आपके पास जो टर्म है, दिस शोज द एक्सक्लूसिव नॉर गेट और ये टर्म भी आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। तो आप ए एक्सक्लूसिव नॉर बी और इसमें कॉमन ले लें सी डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, देन प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, और जबकि ये दोनों टर्म्स जो हैं आपकी कॉमन आ जाएंगी इनकी, जो कि आपके पास है एक्सक्लूसिव ए एक्सक्लूसिव बी, ए एक्सक्लूसिव और बी। अब अगर आप देखें तो ये भी आपके पास जो है एक्सक्लूसिव नॉर गेट और ये भी आपके पास है एक्सक्लूसिव और गेट। सो ए एक्सक्लूसिव नॉर बी इंटू सी एक्सक्लूसिव नॉर डी प्लस ए एक्सक्लूसिव और बी सी एक्सक्लूसिव और डी। This is the final output expression y is equal to a exclusive nor b c exclusive nor d plus a exclusive or b c exclusive or d, and the logic diagram with 4 input variables that will produce logic 1 output when the number of ones in the input is even as shown below। अगर आप देखें तो आपके पास इसमें दो एक्सक्लूसिव नॉर गेट हैं जो कि एक एंड गेट में से पास होंगे और दो एक्सक्लूसिव और गेट हैं जिनकी आउटपुट जो है एक एंड गेट में से पास होगी और फिर उन एंड गेट की जो आउटपुट्स हैं वो एक और गेट में से पास होंगी। आपके पास ये फाइनल आउटपुट आएगी। यहाँ पर अगर आप देखें ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, दिस इज आल्सो एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ए एंड बी यहाँ पे कनेक्टेड है, सी एंड डी कनेक्टेड है, दिस इज एक्सक्लूसिव और गेट, ए एंड बी कनेक्टेड है एंड दिस इज आल्सो एक्सक्लूसिव और गेट, सी और डी कनेक्टेड है। सो यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट आएगी दैट इज ए एक्सक्लूसिव नॉर बी सी एक्सक्लूसिव नॉर डी, ये जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर आपके पास आएगी और फिर यहाँ पर आपके पास ए एक्सक्लूसिव और बी इंटू सी एक्सक्लूसिव और डी, ये जो है आपके पास यहाँ पे फिर सम होंगे और आपके पास जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पे इस इक्वेशन की आएगी। Example number 3, which states that design a combination logic circuits with 3 input variables that will produce logic 1 output when more than one input variables are logic 0। इसको सुनते हैं। Consider we have A, B and C are the 3 inputs and Y is the output,
and the truth table and the Karnaugh map is shown below as per the problem stated in the example number 3. हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं A, B and C. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगी 8 2 to the power 3 that is equal to 8. और आउटपुट हमारे पास जो है 1 कब होनी है, जब हमारे पास मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल्स जो होंगे वो लॉजिक 0 हो. सो मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल्स, हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं. अगर पहली कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो आउटपुट पे जो है 1 लॉजिक आएगी. दूसरी कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 जीरोस हैं, आउटपुट पे हमारे पास 1 आएगा. तीसरी कॉम्बिनेशन में देखें तो हमारे पास 2 जीरोस हैं, आउटपुट पे 1 आएगा. चौथी कॉम्बिनेशन में देखें तो हमारे पास एक ही जीरो है. सो कंडीशन ये थी कि हमारे पास आउट इनपुट के अंदर 2 और मोर जीरोस होने चाहिए, मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल 0 होने चाहिए. सो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट जो है वो 0 होगी. सो जहाँ जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल 0 होंगे, वहाँ पर आपके पास आउटपुट जो है वो 1 होगी. यहाँ पर 2 जीरोज हैं, 1 है. यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ पर 0 नहीं है, तो आपके पास आउटपुट जो है वो 0 से आएंगी. नो आफ्टर developing this table, we have to map these outputs in the Karnaugh map. तो ये हमारे पास Karnaugh map है. ए बी हमारे पास वेरिएबल इस तरफ है और सी हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर है. सो ए बी एंड सी जब 0 0 0 हैं तो आपके पास y 1 है. 0 0 0 वो आपके पास ये पोजीशन है. नंबर 2 कॉम्बिनेशन 0 0 1. सो 0 0 1 यहाँ पर ये मैप हो जाएगा. नंबर 3 जो है आपके पास, जो आपके पास कॉम्बिनेशन है दैट इज 0 1 0. 0 1 0 यहाँ पे मैप हो जाएगा. फिर आपके पास जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 1 0 0 1 0 0, वो ये है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैप हो जाएगा. अब आपने पेयर्स बनाने हैं. एक पेयर आपके पास ये बन जाएगा, एक पेयर आपके पास ये बन जाएगा और एक पेयर ये वाला बन जाएगा. नाउ फ्रॉम Karnaugh मैप वी गेट द बुलियन एक्सप्रेशन एज, जब आप इस पेयर को देखें तो यहाँ पर C वेरिएबल चेंज हो रहा है 0 to 1. सो A और B दो की वैल्यूज जो हैं वो दोनों सेल्स में सेम है. सो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब आप इस वो पेयर को देखें तो यहाँ पर आपके पास B की वैल्यू चेंज हो रही है जबकि A और C की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. एक दैट इज प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू C कॉम्प्लीमेंट. अब आप इस कॉम्बिनेशन को देखें, इस पेयर को देखें तो यहाँ पर आपके पास B की वैल्यू चेंज नहीं हो रही और C की वैल्यू चेंज नहीं हो रही जबकि A की वैल्यू चेंज हो रही है. सो प्लस B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट. So the final output expression is as under, that is y is equal to A complement B complement plus A complement C complement plus B complement C complement. And the logic diagram with 3 input variables that will produce logic 1 output when more than 1 input variables are logic 0 as shown below. अगर आप इस बुलियन एक्सप्रेशन को देखें तो आपके पास 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं. आपको जो है 3 एंड गेट रिक्वायर्ड है और 3 इन्वर्टर्स रिक्वायर्ड हैं और एक 3 इनपुट और गेट रिक्वायर्ड है ताकि आपके पास लॉजिक डायग्राम ये डिज़ाइन हो सके. सो गेट 1 पे आपके पास A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट आएगा. सो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट. गेट 2 जो कि एंड गेट है उस पर A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट आएगा, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट. गेट 3 जो तीसरा एंड गेट है वहाँ पर आपके पास आएगा B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट. इनकी जो आउटपुट्स हैं वो आपके पास होंगी 3 इनपुट और गेट की इनपुट्स और ये आपके पास आउटपुट पर आएगी, दैट इज y इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट. एंड दिस इज द logic design of the problem stated in example number 3. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था
जिसमें हमने कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स और स्पेशली कंपैरेटर्स को डिस्कस किया। आप इस लेक्चर को गो थ्रू करें, और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इजीली और फ्रीली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन द क्लासरूम। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।